class. Today's our topic is organic acid and alcohols. It means the use of different types of microbes in the production of organic acids and alcohol. In this page, you can see different types of tables. In first table, there are 3 columns in which the first column there is a mention of organic acid, second is the microbes and third is the types of microbes. Suppose the first typology of microbe, that is fungi. The name of fungi is Aspergillus niger and the organic acid produced by the Aspergillus niger is citric acid. Similarly, the next category of microbes, which is bacteria. The name of bacteria, Acetobacter aceti. The species of Acetobacter is aceti. From Acetobacter aceti, the organic acid produced, that is the acetic acid. Now, next bacteria, Clostridium butylicum. And the name of organic acid which produced by the Clostridium butylicum is butyric acid. Same as the name of organic acid, that is the lactic acid. Already you studied about lactic acid. Lactic acid produced by the microbes, that is Lactobacillus species, and the type of microbes is bacteria. So by this table it is very easy to learn. So all of you have to make this table and learn it. Now next, the alcohol. All of you know that the alcohol is the ethanol. You also studied about the alcohol. Alcohol, it means ethanol, is produced by the yeast. The types of microbes is yeast and the name of yeast is Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae, actually it used in the fermented beverage. So it is also called as the brewer's yeast. And Saccharomyces cerevisiae is also used in the fermentation of dough. So Saccharomyces cerevisiae is the fungi which is used as the baker's yeast and brewer's yeast. It is very important. Now the next category, enzymes, means different types of microbes used in the production of different types of enzymes. So which type of enzymes and what are their uses? It is also very important for your exam. Suppose number 1, that is lipase. The name of enzyme, that is a lipase, and the use of lipase is, it is used in the detergent formation. Okay, detergent formulations. Here you can see in detergent formulation the enzyme used, that is lipase. Second, pectinase and protease. Pectinase and protease. The use of pectinase and protease is clarifying bottled juice. बहुत पूछा जाता है बेटा ये name of enzyme which is used in the clarifying bottled juice. Then you have to learn pectinase and protease. Third is clot buster. Clot buster, which type of enzyme? The name of enzyme which is used as a clot buster. What is the use of clot buster? Clot buster means for removing the clots from bottle vessels of patients who have undergone myocardial infarction. So the name of enzyme is streptokinase. Streptokinase, definitely it is produced by the Coccus categories. So the name of bacteria is Streptococcus and the modified it by the genetic engineering. Similarly, the third table,
here you can see, wait beta, in this third table, bioactive molecules means different types of use of microbes in bioactive molecules. These molecules are uses in different industries in different types, like cyclosporine A. The source organism of cyclosporine A, that is Trichoderma polysporus. That is Trichoderma polysporum or sporus. This is a type of fungi, and the use of this fungi is as a immunosuppressive agent in organ transplant. Clear? इम्यूनोसुप्रेसिव एजेंट इन ऑर्गेन ट्रांसप्लांट पेशेंट. जिन पेशेंट्स का ऑर्गेन ट्रांसप्लांट होता है ये वहां पर यूज किए जाता है. ठीक है. नाउ द सेकेंड इज स्टैटिन. द यूज ऑफ स्टैटिन इज अ बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स एंड द organism by which statin is produced, that is also a fungus, and the name of this fungus is Monoscus purpureus. Monoscus purpureus. आपको ये सब ही लर्न करना पड़ेगा. It is used as the blood cholesterol lowering agent. It comparatively inhibits like enzymes for cholesterol of synthesis. Means जिनके बॉडी में ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तब यहाँ पर स्टैटिन का यूज किया जाता है, जिससे क्या होता है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल रिड्यूस हो जाता है वेरी इजीली. So these are the different types of microbes, and I hope that you all have understood the different roles of all these microbes. Clear? ये टेबल आप सभी को बेटा बनानी है और इस टेबल के थ्रू आपको ये सारा प्रिपेयर करना है. फर्स्ट टेबल इन आपने क्या पढ़ा इसमें, ऑर्गेनिक एसिड, डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रोब्स, नेम एंड उनका यूज क्या क्या होता है, कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड है जहां पर इनका यूज किया जाता है. सेकेंड आपने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स एंड देयर यूजेस, एंड इन थर्ड टेबल you have studied about some bioactive molecules and their source organisms and uses. Bioactive molecules समझ में आ गया होगा आप सभी को. Bioactive क्यों है? Because these molecules are obtained by biological agents. ठीक है, जैसे फंगी है, ये सभी जितने भी माइक्रोब्स हैं ये सब बायो एजेंट कहलाते हैं. Now the next topic, that is microbes in sewage treatment. Microbes in sewage treatment. So here the first question arises, what is sewage? Sewage क्या होता है? Sewage actually it is the municipal waste water containing large quantities of human excreta. ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा जो सीवेज में पाया जाता है वो ह्यूमन एक्सक्रीटा है एंड सम अदर ऑर्गेनिक वेस्टेज. इट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पैथोजेनिक माइक्रोब्स. इस सीवेज में बहुत ज्यादा अमाउंट में पैथोजेनिक माइक्रोब्स पाए जाते हैं विच आर वेरी हार्मफुल. ठीक है, सो we can say that the sewage is the source of various waterborne diseases. सीवेज की वजह से बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं waterborne diseases के. Second, it can cause eutrophication of water bodies. Eutrophication of water bodies which later brings about depletion of oxygen. और अगर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा, killing of fish and other aquatic animals means depletion of oxygen in water bodies affect the life of fishes and other aquatic animals. So there is a need to clean sewage. ठीक है, सेकेंड टॉपिक है आपका कि व्हाट इज द नीड फॉर सीवेज ट्रीटमेंट. तो सीवेज को ट्रीट करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो ये आपकी नीड्स में आ जाएगा. बिकॉज सीवेज कंटेन लार्ज अमाउंट्स ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, पैथोजेनिक माइक्रोब्स
and sewage is the source of numerous waterborne diseases. It can cause eutrophication by which the oxygen level decrease inside the water bodies. So the level when it decrease inside the water bodies, definitely the aquatic life will be disturbed. So there is a need to treat sewage. Clear? सीवेज को कैसे ट्रीट किया जाता है? बहुत सारे प्लांट्स मींस सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए, STPs, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. जब कभी भी सीवेज को वाटर बॉडीज में छोड़ा जाए, उससे पहले इनको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के थ्रू क्लीन किया जाता है. ये प्लान कैसे दिमाग में आया? ठीक है, ये बहुत जरूरी है जानना. आपको पता है at one time Ganga river and Yamuna river and other scared rivers of India had become the most populated river. Why? Because there are numerous raw sewage and discharges from different industries were allowed into pass into them directly. बहुत सारे इंडस्ट्रीज से जो कचरा या जो सीवेज था, वो सारा सीवेज और इंडस्ट्रीज से निकलने वाला सारा कचरा डायरेक्टली गंगा और यमुना रिवर में डाल दिया जाता था. ठीक है, सो उससे क्या होना शुरू हुआ? दैट वाज द एंडेंजरिंग द लाइव्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स विद मैक्सिमम नंबर ऑफ वाटर बॉर्न डिसीजेस एंड फाइनली डेथ. So therefore, Ministry of Environment and Forest initiated special plan. और वो plans क्या थे? To clean the rivers, गंगा एक्शन प्लान, गंगा रिवर को क्लीन करने के लिए, एंड यमुना एक्शन प्लान, यमुना रिवर को क्लीन करने के लिए. इन रिवर को क्लीन कैसे किया जा सकता है? बाय बिल्डिंग सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. ठीक है, सबसे पहले सीवेज को ट्रीट किया जाए थ्रू डिफरेंट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स. और ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स खोले गए कहाँ कहाँ पर? फॉर ऑल द टाउन्स एंड सिटीज पासिंग देयर वेस्ट वाटर इनटू रिवर्स. इट इन्वॉल्व्स क्लीनिंग ऑफ मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ सीवेज डेली. ठीक है, तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक? कैसे सीवेज को ट्रीट किया जाता है, कैसे सीवेज को ट्रीट किया जाता है. हियर यू कैन सी मेनली टू मेथड्स ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लान, प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंडरी ट्रीटमेंट. फर्स्ट मेथड, दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट. दिस इज द फर्स्ट मेथड एंड दिस इज द डायग्राम of sewage treatment plant. Primary treatment, that is called as a physical treatment, and second is secondary treatment or biological treatment. Primary treatment, it is a physical removal of large and small particles from sewage. सबसे पहला स्टेप है, इसमें क्या होता है? जितने भी डेब्रिस होते हैं फिजिकल, मीन्स आपको जो आंखों से नजर आते हैं, लार्ज पार्टिकल्स, पॉलीथीन्स हो गए या जो भी ऐसा कचरा जो बहुत बड़ा बड़ा है, उसको फिल्टर किया जाता है. वो आप अपनी आंखों से देख सकते हैं उस कचरे को, तो इसीलिए इसको फिजिकल ट्रीटमेंट कहा गया. ये पहला प्राइमरी ट्रीटमेंट है इन दिस फिजिकल रिमूवल ऑफ लार्ज एंड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम सीवेज. कैसे होता है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल, the floating debris is removed by filtration. फिल्टर, एक छन्ना होता है, फिल्टर लगाया जाता है. कैसे? by passing through wire mesh screens. मीन्स इन दिस डायग्राम एक टैंक है बेटा, उसमें एक इन्होंने मेश लगाया और वहां पर इन्होंने जो आपका सीवेज है उसको डाला, तो वो सारा फिल्टर हो जाता है. देन ग्रिड. ग्रिड क्या होता है? ग्रिड इज द सॉयल एंड स्मॉल पेबल्स. जब वो छनता है तो वो जो उसमें सॉयल के पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पेबल्स होते हैं, दे आर रिमूव्ड बाय सेडिमेंटेशन इन सेटलिंग टैंक्स.
इन दिस डायग्राम यू कैन सी दिस इज द प्राइमरी सेटलिंग टैंक. यहाँ पर सीवेज डिस्चार्ज किया गया. सीवेज, ये जो डिस्चार्ज सीवेज होता है, यहाँ जितनी भी ग्रिट होती है वो सारी नीचे सेटल डाउन हो जाती है. ठीक है. और जो सेडिमेंट नीचे इकट्ठा होता है दैट इज कॉल्ड एज द प्राइमरी स्लज. इसे क्या कहते हैं? प्राइमरी स्लज. प्राइमरी स्लज क्या है? ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आते हैं. प्राइमरी स्लज एक्चुअली इट इज द सेडिमेंट्स ऑफ सीवेज इन द फॉर्म ऑफ ग्रिट. सॉइल और जो स्मॉल पेबल्स होते हैं जो नीचे आपके एक तरीके से जो सेडिमेंट कर जाते हैं, निथर कर जो नीचे बैठ जाते हैं, इसी को हम प्राइमरी स्लज कहते हैं. एंड द सुपरनेटेंट, सुपरनेटेंट जो बचा हुआ लिक्विड है, जो फिल्टर होने के बाद जो सीवेज बचता है दैट इज कॉल्ड इफ्लुएंट. क्लियर? इफ्लुएंट पे भी क्वेश्चन आता है. इफ्लुएंट क्या होता है? इफ्लुएंट इज सुपरनेटेंट मीन्स द लिक्विड आफ्टर फिल्ट्रेशन. कौन सा लिक्विड? सीवेज. जो आपका फिजिकल जो डेब्रिज थे वो रिमूव हो जाने के बाद जो लिक्विड बचता है दैट इज कॉल्ड एज द इफ्लुएंट. द इफ्लुएंट इज देन टेकन इनटू सेकेंडरी ट्रीटमेंट. तो प्राइमरी ट्रीटमेंट, कई बार क्वेश्चन में केवल प्राइमरी ट्रीटमेंट ही पूछा जाता है या फिर केवल सेकेंडरी ट्रीटमेंट ही पूछा जाता है. तो बेटा आपको ये दोनों ही अच्छे से मालूम होने चाहिए. आपका जो प्राइमरी इफ्लुएंट बना दैट इज द फिल्ट्रेशन ऑफ फिजिकल रिमूवल. तो फर्स्ट प्रोसेस इज द एक्चुअली फिल्ट्रेशन. ठीक है. नाउ द सेकेंडरी ट्रीटमेंट. सेकेंडरी ट्रीटमेंट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट. बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों है? क्योंकि इसमें हम बहुत सारे माइक्रोबियल एक्टिविटीज देखेंगे. ठीक है. जैसे ही इस प्राइमरी जो आपका इफ्लुएंट बचता है, इस सेकेंडरी ट्रीटमेंट में primary effluent is passed into large aeration tank. In this diagram, this is the large aeration tank. इस प्राइमरी इफ्लुएंट को नीचे बेटा आपके ये जो प्राइमरी स्लज है वो आपका नीचे बैठ जाता है. जो इफ्लुएंट है उसको यहाँ से पास किया जाता है और ये आपका एरिएशन टैंक है. इस एरिएशन टैंक में इसको डाल दिया जाता है विथ कॉन्स्टेंट मैकेनिकल एजिटेशन एंड एयर सप्लाई. इस एरिएशन टैंक में एयर पंप की जाती है. एयर पंप करने से, इसीलिए इसको एरिएशन टैंक कहते हैं. ठीक है. यहाँ पर जो आपका इफ्लुएंट है वो पास आउट किया जाता है और इसमें हम एयर पंप करते हैं. जैसे ही एयर पंप की जाती है इफ्लुएंट में, क्या होता है? जो भी इफ्लुएंट के अंदर बहुत सारे जितने भी माइक्रोब्स हैं, एरोबिक हेटरोट्रोपिक माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया, फंगी एंड प्रोटोजोन्स, ये आपके सारे लार्ज क्वांटिटी में निकल कर आते हैं. ठीक है. एयर जैसे ही इनोकुलेट होती है, यहाँ पर जितने भी बैक्टीरिया जो आपको नजर नहीं आ रहे थे उस इफ्लुएंट में, वो यहाँ पर बहुत लार्ज अमाउंट में दिखाई पड़ते हैं और ये आपस में इतने ज्यादा नेटवर्क के फॉर्म में होते हैं. इस नेटवर्क को हम कहते हैं फ्लॉक्स. FLOCK. ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. कई बार ये क्वेश्चन में आता है कि व्हाट इज फ्लॉक्स. तो फ्लॉक्स क्या होते हैं? हियर यू कैन सी इन दिस पॉइंट, दिस इज फ्लॉक्स. फ्लॉक्स आर द masses of bacteria associated with fungal filament to form mesh like structure. क्लियर बेटा? फ्लॉक्स आर द masses of, किसका मास होता है, किसका नेटवर्क होता है? फ्लॉक्स. बैक्टीरिया एसोसिएटेड विद फंगल फिलामेंट. दिस इज द फ्लॉक्स. 1 मार्क क्वेश्चन, प्रिपेयर कर लेना इसको. नाउ अब क्या होता है? ये जितने भी माइक्रोब्स ग्रो करते हैं दे कंज्यूम ऑर्गेनिक मैटर एंड दस रिड्यूस द बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड. BOD, एक्सपेंड फॉर्म ऑफ BOD इज बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. जो इफ्लुएंट होता है उसमें बहुत ज्यादा अमाउंट में ऑर्गेनिक मैटर होता है. जो ऑक्सीजन डिसॉल्व होती है उस इफ्लुएंट में, ये जितने भी एरोबिक माइक्रोब्स होते हैं, जितने भी ये बैक्टीरियाज और ये जो फंगीज होते हैं, ये सारी डिसॉल्व ऑक्सीजन को कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं. तो क्या होता है? जो भी डिसॉल्व ऑक्सीजन है वो आपकी डिमांड बढ़ गई.
बीओडी मीन्स बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल मीन्स ये जितने भी आपके ये जो बैक्टीरिया फंगी है ये लिविंग है, इनको बायोलॉजिकल वर्ड इसीलिए दिया गया है। तो इनके थ्रू ऑक्सीजन की डिमांड का बढ़ जाना, दैट इज बीओडी इंक्रीज होना। किसी भी वाटर बॉडीज में अगर बीओडी का लेवल हाई होता है, इट मीन्स ऑक्सीजन जो कंज्यूम करने की कैपेबिलिटी है वो ज्यादा, मीन्स ऑक्सीजन डिमांड ज्यादा है। डिमांड ज्यादा कब होगी? जब ऑक्सीजन को लेने वाले ज्यादा होंगे। इट मीन्स कि उस वाटर बॉडीज में बैक्टीरियाज और अदर माइक्रोब्स बहुत ज्यादा है, तो वो पानी पॉल्यूटेड होगा। मीन्स हाई पॉल्यूटेड वाटर बॉडीज कब होगी? व्हेन बीओडी इंक्रीज्ड। बीओडी अगर बढ़ा हुआ है, डेफिनेटली दैट वाटर बॉडीज इज पॉल्यूटेड। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? बीओडी आपका बढ़ जाता है ड्यू टू ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स। एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ क्यों हुई? क्योंकि हमने प्राइमरी इफ्लुएंट को एरिएशन टैंक में डाला। एरिएशन टैंक में क्यों डाला? ताकि वहां पर एयर के इनोकुलेशन से जो भी आपके नेकेड, जो आप नहीं देख सकते नेकेड आइज से, वो माइक्रोब्स की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और वो ऑक्सीजन कंज्यूम, इससे पता चलता है कि कितने ज्यादा वहां पर उस पानी में, उस बचे हुए इफ्लुएंट में कितने ज्यादा माइक्रोबियल ग्रोथ है, कितने ज्यादा माइक्रोब्स हैं। नाउ व्हेन द बीओडी ऑफ सीवेज हैज रिड्यूस्ड, द इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। अब यहां पर लिखा है बीओडी रिड्यूस्ड, मींस जब इसकी बीओडी रिड्यूस हो जाती है, देन दिस इफ्लुएंट इज पास्ड इनटू सेटलिंग टैंक। यहां पर क्या होता है? सेटलिंग टैंक में जितने भी ये बैक्टीरियल फ्लॉक्स होते हैं, इनको सेटल डाउन करना होता है। ये सेटल डाउन किए जाते हैं एंड द सेडिमेंट इज कॉल्ड देन एक्टिवेटेड स्लज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज एक्टिवेटेड स्लज? हियर यू कैन सी दिस इज एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्या होता है? एक्टिवेटेड स्लज इज एक्चुअली द sediments of bacterial flocks. Now a small part of the sludge is used as an inoculation in the aeration tank and remaining parts is passed into large tank, that is anaerobic sludge digester. इसके बाद इनको हम एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में लेकर जाते हैं। एनएरोबिक में क्या होगा? जितने भी ये हमारे एरोबिक बैक्टीरियाज हैं ये डेड हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर इनको एयर नहीं मिलेगी, तो ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे। और यही हम चाहते भी हैं कि सीवेज में जितने भी एरोबिक माइक्रोब्स हैं उनको कैसे डेड किया जाए। ठीक है, तो इनको हम एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर में लेकर जाते हैं। इन द डाइजेस्टर हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स anaerobically digest bacteria and fungi in sludge producing mixture of gases such as methane, hydrogen sulfide and carbon dioxide, और इसको यूज किया जाता है एज ए बायोगैस। ठीक है बेटा, एनएरोबिक स्लज डाइजेस्टर जहां पर हेटेरोट्रॉपिक माइक्रोब्स डाइजेस्ट कर लिए जाते हैं थ्रू एनएरोबिक बैक्टीरियाज एंड फंगी, और बदले में कौन सी गैसेस प्रोड्यूस होती है? मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बायोगैस। इसका यूज बायोगैस में किया जाता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड। ओके बेटा, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक दैट इज here you can see now beta here these are the differences in between primary sludge and activated sludge. I think now you are able to give answer of these questions. Suppose one question is arise here, that is what is the difference between primary sludge and activated sludge? प्राइमरी स्लज आपने पढ़ा है, आपको याद होगा। अभी आपने जो फर्स्ट सीवेज ट्रीटमेंट था, फिजिकल रिमूवल ऑफ डेब्रिस, ठीक है, सो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइमरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज। एंड एक्टिवेटेड स्लज, इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज।
एक्टिवेटेड स्लज कैसे मिला था हमको, जहां पर बैक्टीरियल फ्लॉक्स सेटल डाउन हुए थे, सेटल डाउन सेडिमेंट टैंक में, ठीक है। तो ये जो सेडिमेंट्स होता है, किसका सेडिमेंट हमें मिला, सेडिमेंट ऑफ सेटल डाउन ऑफ बैक्टीरियल फ्लॉक्स, दैट इज एक्टिवेटेड स्लज, और ये फॉर्म हुआ था सेकेंडरी ट्रीटमेंट में, तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट। सेकेंड पॉइंट, प्राइमरी स्लज कंसिस्ट ऑफ raw organic matter and other settleable materials, and here it consists of organic matter which rich in slime and flocks of decomposer microbes. So next question, that is difference between primary and secondary treatment of sewage. Primary treatment is a physical process, correct. Secondary is a biological process. Primary treatment removes both grit and large pieces of organic matter and it removes small size organic materials, ठीक है। जो आपको नेकेड आई से बैक्टीरियाज नहीं दिख रहे थे, वो एरोबिक बैक्टीरियाज, फंगी वगैरह आपने सेकेंडरी ट्रीटमेंट के थ्रू रिमूव किए। इट डजंट रिक्वायर एरिएशन, एरिएशन इज नेसेसरी। इट इन्वॉल्व्स shredding and filtration and sedimentation, and it involves microbial digestion of organic matter, formation of flocks, ठीक है, sludge and sludgeation. Okay, I think you all understood very well mainly two main processes of sewage treatment, that is primary and secondary treatment. So please make notes of primary and secondary treatment and draw this diagram. Thank you so much.